السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فرسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے حرکات کے بارے میں۔ عربک گرامر کو سمجھنے سے پہلے اس کی مزید رولز کو کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسرہ، فتحہ اور ضمہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے بھی سمجھ لیں گے، یا ابھی فی الحال ہم حرکات کو سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں مینشن بھی ہے کہ زیر کسرہ کو کہتے ہیں اور زبر فتحہ کو کہتے ہیں اور پیش ضمہ کو کہتے ہیں۔ یہ ٹرمز انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں۔ عربک میں زیر کو کسرہ، زبر کو فتحہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور جزم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی حرف کو ساکن ظاہر کیا جائے تو اس کے اوپر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس پہ جزم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مشدد بھی ایک ٹرم ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الٹا ڈبلیو جب مینشن ہو کسی لیٹر پر تو اس کو شدہ کے ساتھ شو کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو حروف موجود ہیں، یعنی اس کے اندر ایک ساکن حرف ہے اور دوسرے پر حرکت موجود ہے۔ جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجزوم ہے اس میں نے تا کے ساتھ شو کیا ہوا ہے کہ تا یہاں پر شو کریے کہ جزم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں مشدد کو تو مشدد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لام ہے اس کے اوپر ایک الٹا ڈبلیو کا سائن ہے، اور جب یہ سائن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشدد حرف ہے اور اس کے اندر دو بار لام موجود ہے، اس سے یہ مراد ہوگا۔ پہلا لام ساکن کے ساتھ ہوگا اور دوسرے پر وہی حرکت ہوگی، یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہی حرکت ہوگی جو کہ اس الٹے ڈبلیو کے اوپر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم کچھ مزید ٹرمز کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ سے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتوح میں جہاں پر آپ دیکھیں فتحہ مینشن کیا ہوا، یعنی یہ جب زبر کی بات کرتے ہیں ہم تو ہم وہاں پر اس کو مفتوح کیوں کہیں گے؟ کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر جس کے اوپر زبر ہو یعنی فتحہ ہو، اس حرف کو کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے، یعنی اس کے اپنے اوپر زبر ہے۔ اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مضموم ہے۔
यानी इसके ऊपर पेश मौजूद है या तुम्मा मौजूद है। तो ये तीन टर्म्स इंशाल्लाह को ध्यान में। इसके बाद एक चीज ध्यान में रखने की है कि अलिफ और हमजा में क्या फर्क है। हरूफुल हिजा की अगर हम बात करते हैं तो बाज जो लिंग्विस्ट है वो कहते हैं कि अरबिक लिंग्विस्ट वो कहते हैं कि जो अलिफ है वो यानी अलिफ और हमजा डिफरेंट। अलिफ से मुराद है कि जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, और हमजा से मुराद है जिसके ऊपर कोई हरकत हो, चाहे वो जज़म में क्यों ना हो, वो इससे मुराद होता है। और आप देख सकते हैं कि हमजा की कितने टाइप्स मौजूद हैं। हमजा ओरिजिनली लिखा जाए उसके ऊपर कोई हरकत हो तो वो भी हमजा होता है। अलिफ के ऊपर कोई हरकत मौजूद है तो वो भी हमजा होता है, और अलिफ के ऊपर एक छोटा हमजा हो और उस पर कोई हरकत हो तो वो भी हमजा ही कहलाता है। इसके अलावा अगर वाओ या के ऊपर छोटा हमजा बना हो और उस पर कोई हरकत हो तो वो भी हमजा ही कहलाता है, मगर जो अलिफ है उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, वो अलिफ ही कहलाता है। इसके बाद कुछ मजीद चीज़ों को हम देखेंगे। जी, अभी हम हरकत की बात कर रहे थे कि हरकत का क्या रोल होता है और क्या इम्पोर्टेंस होती है अरबिक में। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, कुछ बुनियादी बातें कि हरकत आखिर कहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं जब हम अरबिक ग्रामर की बात करते हैं। जैसे अभी हमने फतहा वम्मा कसरा पढ़ा, तो वहाँ पर हरकत किस तरह से एक लफ्ज को बदल देती है हम देखते हैं। आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है किताबू। किताबू में देखिए लास्ट पर पेश है, लेकिन अगर आप किताबा देखें तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट पर आप देख सकते हैं कि फतहा है यानी जबर है। अभी फिलहाल मैं आपको पेश या ज़ेर जबर के नाम से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर आगे जब मैं आपको दम्मा कसरा या फतहा कह रही होंगी तो फिर वो आपके लिए इंशाल्लाह अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये इससे मुराद ज़ेर जबर पेश ही है। तो यहाँ देखें कि जो किताबु है इसमें जो लास्ट पर पेश है ये हमें बता रही है कि ये एक काम करने वाला जो है उसके बारे में बात हो रही है, यानी एक फाइल की बात हो रही है। अगर लास्ट पर पेश हो तो इसका मतलब है कि जुमले में इस किस्म का इस्म वो फाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और अगर उसके लास्ट पर ज़बर हो तो इसका मतलब है कि वो मफऊल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी उसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है या फिर ये कि मजीद कोई डिटेल्स फाइल से रिलेटेड बताई जा रही होती हैं। अ, इसकी बहुत डिटेल इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन हम आगे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को समझ लें कि अ, ज़बर और ज़ेर या पेश इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर आपको मैं मिसाल दूँ उर्दू से, तो आप देखें यहाँ पर एक मिसाल है कि आयशा किताब पढ़ती है। अब देखें आयशा किताब पढ़ती है में आप देखें कि आपको खुद से समझ आ रही है कि काम करने वाला कौन है इस जुमले में। जी बताइए कौन है काम करने वाला। आयशा किताब पढ़ती है, इसमें कौन काम कर रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है। आयशा। आयशा किताब पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। और जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो क्या है। किताब। किताब। इसमें ये पता चला कि जो फाइल है यानी काम करने वाला है वो आयशा है, और जो मफऊल है यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो किताब है। और पढ़ना एक वर्ब है यानी फेल है, कोई काम जब हो रहा होता है पढ़ना एक काम को शो करता है। तो उर्दू में तो हम ये इसको इजीली समझ लेते हैं कि आयशा शुरू में आ रहा है यानी ये काम करने वाली होगी, और किताब बाद में आ रहा है ये इसके ऊपर काम हो रहा है, और फेल क्या है। इंग्लिश में भी अगर आप देखें कि अगर हम इसको बनाते हैं कि आयशा रीड्स बुक, ठीक है, आयशा रीड्स बुक, तो आप देखें कि इसमें आपको पता चल रहा है कि आयशा काम करने वाली है यानी आयशा पढ़ रही है।
रीड्स अ बुक भी कह सकते हैं। वो कोई एक किताब पढ़ रही है, और इसमें आप देखें कि आयशा यहाँ पर भी पहले आया हुआ है। यानी इसकी पोजीशन को देखते साथ ही हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर ये आयशा लिखा हुआ है शुरू में, यही काम करने वाली है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद एंड पे जब हम देखते हैं कि अ, मफऊल को यानी ऑब्जेक्ट को, कि अ, हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसके ऊपर ही काम हुआ हुआ है, और यही यहाँ पर उसकी प्लेस है जहाँ पर ये यानी आया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ अंडरस्टूड होता है हमें। लेकिन अरबी में क्या होता है कि अरबी में इस तरह से सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता हमेशा, और उसके बाद आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मिलेगा फॉर्मूला के उसके जो किताब है यानी जो बुक है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आती हो, बल्कि ये आगे पीछे होता रहता है। उर्दू में देखें कि वर्ब यानी फेल पढ़ती है, जो काम हो रहा है वो एंड पर आया हुआ है जुमले, ऐसा ही है। आयशा किताब पढ़ती है, पढ़ एंड पर आया हुआ है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ना दरम्यान में आया हुआ है, रीड्स। ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता हो कि कौन सा मफूल है और कौन सा फाइल है और कौन सा कलर के साथ आप इसको पहचान सकें। तो आप देखिए कि इंग्लिश में तो जो फेल है वो रीड यानी काम करना, पढ़ना, ये दरम्यान में आया हुआ है। लेकिन आप देखें कि उर्दू में ये एंड पर बताया जा रहा है। इसी तरह से इंग्लिश में भी इसकी जो तरतीब होती है, सॉरी अरबी में भी इसकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। यानी ये आगे पीछे हो सकता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा काम करने वाला शख्स है और किसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा अरबी में जुमले में? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम उसके लास्ट पर वही चीज देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई, कि उसके लास्ट पर आपने पेश देखनी है यानी दोमा। जी, जैसे यहाँ पर मेंशन है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ आपको। देखें, जहाँ किताबू है या किताबुन, किताबुन आएगा यहाँ पर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, किताबुन। और अगर किताबन आए तो ये उसकी डिटेल होगी, और उसके साथ अलिफ भी एडिशनल ऐड होता है। तो जब भी आपने फाइल ढूंढना हो किसी जुमले में से कि काम करने वाला कौन है, तो आप देखेंगे कि उसके आखिर में, आखिर उसकी हरकत क्या है, उसके आखिर पे पेश है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो फाइल है यानी काम करने वाला है। उर्दू में क्योंकि हमारे पास कोई, हम नेटिव स्पीकर्स हैं और हमें अंदाजा हो जाता है, इंग्लिश में भी अंदाजा हो जाता है कि कौन काम करने वाला है, कहाँ पर इसकी प्लेस होगी। लेकिन अरबी में नहीं अंदाजा होता। अरबी में तो जब कुरान खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि जिसके लास्ट पर पेश है, जिसके लास्ट पर जबर है, कुछ भी है, वो ऐसा लगता है कि जैसे अगर इसम को ढूंढ रहे हैं तो फिर सारे ही इसम है, अगर फेल को ढूंढ रहे हैं तो सभी फेल हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं होता। तो एक मोटा सा असूल जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि अगर उसके लास्ट पर आपको तनवीन नजर आ जाती है, तनवीन के साथ पेश के साथ तनवीन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये इसम ही है। ठीक। और अगर लास्ट पर आपको दो जबर नजर आ जाती है अलिफ के साथ, तो इसका मतलब है कि ये भी इसम है। लेकिन आपको पता है कि इसम काम करने वाला भी किसी का नाम होता है, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है वो भी किसी चीज का ही नाम होता है। जैसे कि मिसाल में देखें, आयशा किताब पढ़ती है, आयशा भी किसी का नाम है, इसम कहते हैं किसी नाम को। किताब भी किसी का नाम है, ये भी इसम है। लेकिन एक इसम काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और एक इसम वो ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि उसके ऊपर काम हो रहा है। तो दोनों इसम की पहचान करने के लिए हमें अरबी में हरकत से हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको हम एराब कहेंगे, हरकत नहीं कहेंगे। हरकत तो समझने के लिए आपको बताया, लेकिन इसके बाद आगे हम इसको एराब ही से समझेंगे। तो उसको एराब एराब कहते हैं कि जो लास्ट हरकत होती है, बाकी सारी हरकत को आप एराब नहीं कहते, जो एंडिंग इसकी हरकत होगी ना उसको कहेंगे एराब। जैसे आप देखें, लास्ट पर अगर तनवीन है, दो पेश है, तो ये इसका एराब है। अगर लास्ट पर दो जबर है तो ये इसका एराब है। लेकिन पीछे जो किताब के ऊपर जबर है या किताब काफ के नीचे जेर है, ये एराब नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात क्या आपको? जी मैम आ रही है।
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اعراب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے اور کس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور اس کی مزید بھی ڈیٹیلز ہوں گی۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسم، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسم ہے یہ، تو اسم کیا چیز ہوتی ہے، ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ عربی میں اگر ہم کلمہ کی بات کریں تو عربی میں تمام کلمات جو ہیں یا کلمہ جو ہے وہ بامانی ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایک حرف کو بھی دیکھیں گے نا عربی میں، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہوگا، جیسے با۔ اگر اسمی با پلس اسمی لگا دیا جائے، میں یہاں پہ لکھ کے بھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جی، اگر آپ دیکھیں کہ با کے ساتھ اگر آپ اسم لگا دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ بسمی۔ الف ڈراپ ہو جاتی ہے اور یہ بسمی بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ با کا بھی مطلب ہے کہ با بسمی، سات نام کے۔ تو عربی میں جو ہر حرف جو ہے وہ بامانی ہوتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسم ہے یعنی کلمہ جو ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کلمہ ہمیشہ بامانی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور کلمہ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ نے اگر ایک جملہ بنانا ہے تو ایک جملے میں آپ کو عربی زبان میں کون کون سی چیزیں آپ کے پاس، آپ کو مطلب آپ کا سامنا ہوگا، یا آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ نمبر ون، آپ کو اسم، ایک ہوتا ہے اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا حرف۔ ہر چیز کا ہر زبان میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام موجود ہے۔ جو چیز آپ اپنے کمرے میں موجود ہے، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کتنی چیزیں موجود ہیں، اور آپ کو اس کا اردو میں نام معلوم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نام اس کو دیا گیا ہوتا ہے، تو نام کو کہتے ہیں اسم۔ اسی طرح سے یہ صرف اردو میں ہی نہیں، عربی بلکہ ہر ایک زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے، وہ ہے اسم۔ کسی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی آئیڈیا کا نام، کسی خاصیت کا نام، کسی صفت کا نام، یہ سب کا سب اسم ہی کہلائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فعل، فعل کوئی نہ کوئی کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ ٹائم باؤنڈیڈ ہوتا ہے، یعنی یہ کسی خاص وقت کے اندر قید ہوتی ہے اس کی بات۔ مثال کے طور پر اگر میں ابھی کلاس لے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی حال کی بات کر رہی ہوں۔ اگر میں نے پاسٹ میں کوئی کام کیا تھا ماضی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ماضی کی بات کر رہی ہوں، وہ گزر چکا۔ یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، نام تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کپ ہے تو اس کا نام ہمیشہ کپ ہی رہے گا، وہ ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہے، اس کا وقت کی قید نہیں ہے۔ اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی، لیکن فعل میں یعنی ورب میں وقت کی قید ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ایکشن کو یا کسی کام کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام ختم بھی ہوگا، اور جب وہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو وہ ماضی کا بھی حصہ بن جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ماضی میں تھا۔ اگر آپ ابھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حال میں تھا، اگر آپ کا ارادہ آگے کرنے کا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فیوچر کا حصہ ہوگا، مستقبل کا۔ تو اس طرح سے فعل بھی ایک کلمہ کا حصہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حرف۔ حرف کہتے ہیں ایک ایسے یعنی کمبینیشن آف الفابیٹس کو، یعنی حروف کا مجموعہ، یا ایک حرف بھی ہو سکتا ہے جو بامانی تو ہوتا ہے، بامانہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اکیلا اپنا معنی مکمل نہیں کرتا۔ جیسے اسم میں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی چیز کا نام لیا، اب آپ کو وہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے عائشہ کا نام لیا ہے، یا پھر سائرہ کا نام لیا ہے، یا پھر احمد کا نام لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب نام جو ہے، یہ ان کو اب آپ کو کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑ کے ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نام ہے۔ اسی طرح سے اگر فعل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کام کی بات ہو، جیسے پڑھنا ایک کام ہے، آپ کو اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کے اس کا معنی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک کام ہے جس کے بارے میں، ایک لفظ ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ حرف کی بات کرتے ہیں تو یہ حروف ہوں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بسمل کی مثال دی تھی، تو یہ حروف ہوں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے۔
कोई भी इसम या फेल इनके साथ अटैच हो तो फिर ये अपना माना मुकम्मल करते हैं, नॉर्मली इसम के साथ। और इसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। तो हर्फ जो है ये बामाना तो होता है, लेकिन अपना माना अकेला मुकम्मल नहीं कर सकता। जैसे आप देखें इंग्लिश में प्रपोजिशंस होती हैं, लेकिन हर्फ की बहुत ब्रॉड, अरबी में बहुत ब्रॉड है, ये सिर्फ प्रपोजिशन नहीं है या कंजंक्शंस नहीं है, ये बहुत ब्रॉड इसकी है। इसकी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको जब पढ़ेंगे तो कि कितना ब्रॉड है। अब हम उर्दू में देख लेते हैं कि इसम जो है ये उर्दू में देख के हम इसको देखते हैं कि इसम किस चीज को जाहिर करता है। जी, इसम में देखें कि किताब, इस आप भी जरूर बताएं कि इसम कितने किस किस्म के हो सकते हैं। जैसे किताब इसम है, और मुस्लिम इसम है, यानी किसी मुसलमान का नाम। वर्जिश, वर्जिश भी एक एक्टिविटी का नाम है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें पढ़ना एक एक्टिविटी का नाम है, नहीं किसी काम के नाम को भी इसम ही कहते हैं। और इसमें आप देखें कि आयशा किताब पढ़ती है, मैं आयशा इसम है और किताब भी इसम है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये इसम, जब एक जुमले में तीन चार पांच इसम आ रहे हैं फर्ज करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इसम काम करने वाला है, कौन सा इसम के ऊपर काम हो रहा है। अभी हमने थोड़ा देखा कि उस पे लास्ट पर पेश हो तो इसका मतलब है वो काम करने वाला है, उसके लास्ट पर जबर हो तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन इसम के कुछ पहलू भी होते हैं जिससे कि हमें उसके बारे में पता चलता है। तो आप देखें एक जुमला आपके सामने, आयशा किताब पढ़ती है, इसके अंदर आप देखें कि आपको क्या आयशा को देखते साथ ही आपको ये समझ आ रही है कि आयशा की जिन्स कौन सी है, यानी आयशा लड़की है या मर्द है। जी, समझ आ रही है आपको इस चीज से। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मिस, आ रही है आवाज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप मुझे ये बताएं कि आयशा किताब पढ़ती है, एक जुमला मैंने बनाया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आयशा नाम को देखते ही आपको समझ आ रही है कि ये मर्द का नाम है या औरत का नाम है, यानी जिन्स का पता चल रहा है इसकी जेंडर का? जी मिस, बिल्कुल पता चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको इस नाम को देखते ही ये पता चल रहा है कि एक लोग हैं, दो हैं या ज्यादा हैं? मिस, सिंगल पर्सन का ही पता चल रहा है क्योंकि अभी तो हरकत वगैरह कुछ भी नहीं है ना। जी, आपको नाम से ही, इसम से ही पता चल रहा है कि इसका अदद क्या है, यानी ये एक शख्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आप देखें कि क्या आपको इस नाम को देखते ही इस चीज का पता चल रहा है कि ये नाम यानी कॉमन है या प्रॉपर, यानी किसी खास शख्स का नाम है या फिर कोई कॉमन नाउन है, यानी कोई भी लड़की का नाम है। मिस, कॉमन नाउन है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएं क्या आपको इस चीज की समझ आ रही है इसको देखते ही कि क्या ये जो इसम यहाँ यूज किया गया है, क्या ये, सॉरी ये मैं थोड़ा एडिट करना चाह रही हूँ, क्या ये काम करने वाली है या फिर इसके ऊपर काम हो रहा है? मिस, सेंटेंस पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि ये काम करने वाली है। जी, मुझे आपकी समझ नहीं आई। मिस, काम करने वाली है आयशा ये। काम करने वाली है, हम इसको देखेंगे कि क्या ये कॉमन है या प्रॉपर है, हम इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक इसम को देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि क्या ये कॉमन है, यानी इसकी वुसअत का आपको पता चल जाना चाहिए, आपको इसकी जिन्स का पता चल जाना चाहिए, और
जी, आपको इसकी जिन्स का पता चल जाना चाहिए। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसकी आदत कितने हैं, यानी एक लोग बात कर रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, या दो हैं। और इसकी टाइप का पता चल जाना चाहिए, इसकी वुसअत क्या है, क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। और आपको पता है कॉमन नाउन क्या होता है, कि अगर मैं कहूँ कि कोई लड़की, तो इसका मतलब है कि कोई भी लड़की हो सकती है, वो कॉमनली किसी भी बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसका कोई नाम ले दूं कि ये उसका नाम था, तो इसका मतलब है कि अब वो कोई और लड़की नहीं हो सकती, कोई भी हजारों में से कोई भी लड़की नहीं हो सकती, बल्कि अब उन हजारों में अगर कोई आयशा है तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आयशा ही की बात हो रही होगी। अगर वो राबिया है तो सिर्फ राबिया ही की बात हो रही होगी। समझ आ रही है? तो ये कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस है, यानी नकेरा मारफा जिसको हम कहते हैं, मारफा नकेरा। तो यहाँ आयशा जो है वो मारफा है, क्योंकि ये आयशा ही मुराद है, इससे कोई भी लड़की मुराद नहीं है। अच्छा, इसमें अब हम ये देख रहे थे कि चार चीजों का आपको एक इसम को देखते ही पता चल जाता है किसी भी लैंग्वेज में। वो सिंगुलर है, या यानी उसकी जिन्स, उसकी वुसअत और उसकी हालत। उसकी हालत से क्या मुराद होगा, कि वो जुमले में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यानी क्या वो जुमले में काम करने वाला है या फिर उसके ऊपर काम हो रहा है, उसका क्या स्टेटस है इस जुमले में। तो ये चार पहलू आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखने हैं। और ये मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में भी जैसे मैंने आपको आयशा की मिसाल से सब कुछ पूछा है, तो ये चार चीजें वहां पर भी इस्तेमाल हो रही थी, और ये हर लैंग्वेज में होती हैं। तो ये अरबी में भी होती हैं, इसलिए आपने ये चार पहलू अपनी फिंगर टिप्स पे रखने हैं इंशाल्लाह, कि उसका जिन्स, उसकी आदत, उसका वसत और उसकी हालत। ठीक है, जिन्स का मतलब होगा कि वो लड़की थी या लड़का। आदत का मतलब होगा एक है, दो है या ज्यादा है। वसत का मतलब होगा मार्फा है या नकरा है। और हालत का मतलब होगा कि क्या वो काम करने वाली है या फिर उसके ऊपर काम हो रहा है या फिर उसकी कोई और हालत है। इतनी बात आपको समझ आ गई? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम कुछ मजीद देख लेते हैं क्विकली। और हम इसमें देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैस्कुलिन या मुजक्कर लिखा हुआ है। तो हम जिन्स में सबसे पहले मुजक्कर की जिन्स को थोड़ा देख लेते हैं, और देखते हैं कि इसको किस तरह से यानी इसमें आप एक इसम को लेके कैसे बदल सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आयशा है या फिर कोई, आयशा को रहने दें, यानी कोई तो मार्फ है ना, अगर आप कॉमन नाउन लेते हैं, नकेरा लेते हैं, तो आप उसको कैसे बदलेंगे, उसका जमा कैसे बनेगा। इंग्लिश में तो हमें पता है कि हम उसका एस या यस लगा देते हैं एंड पे, तो जमा बन जाता है। उर्दू में हमें पता है कि हम किताब से किताबें कर देते हैं, या नून गुन्ना कर देते हैं किताबें, तो ये उर्दू में जमा बन जाता है, या किताबों ये जमा बन जाता है। लेकिन आखिर अरबी में कैसे जमा बनाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये चारों पहलू हम किस तरह से इसके चारों पहलुओं को कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, हम आप ये देखें कि सामने आपके लिखा हुआ है वाहिद, मुसन्ना और जमा, नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी मिस। जी मैम आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि यहाँ पर आप देखें कि आप ये सपोज करेंगे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसका कॉलम, पहला कॉलम है वाहिद का, पहला कॉलम है वाहिद का, और मैं इसको एक ही कलर कर देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये अ, एक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, पहला कॉलम है वाहिद का, दूसरा है मुसन्ना का। और अरबी में दूसरी लैंग्वेजेस से हटकर अरबी में क्या होता है कि इसमें दो के बारे में अलग से इसको कैटेगराइज किया जाता है। आप देखें कि इंग्लिश में तो हम सिर्फ बुक और बुक्स ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि यानी बुक को जब टू बुक्स कहा जा रहा हो तो बुक की शक्ल डिफरेंट हो जाए, बुक्स ही होता है, एस लगा के ही इसको पता चल जाता है। लेकिन अरबी में ये डिफरेंट है, अरबी में दो के लिए अलग से लिस्ट है, दो चीजों को शो करने के लिए। तो हम उसको इंशाल्लाह देख लेते हैं। जी,
جی آپ دیکھیں کہ اب یہ سیم کلرز ہو گئے اور آپ اس کے کالم سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں ہم نے اگر عدد کے حساب سے دیکھنا ہے اس کو تو ہم یہ دیکھیں گے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے دو لوگ، اور جمع کا مطلب ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ. تو جب ہم واحد، مثنیٰ اور جمع کی بات کریں گے تو یہ ہے عدد، اسم کا عدد اس سے شو ہوگا. اگر ہم بات کریں گے اس کی جنس کی تو آپ دیکھیں کہ جو بینگ اردو اسپیکرز ہمارے لیے بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اردو میں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مراد ایک مسلم مرد ہے. لیکن جب ہم اس کے اینڈ پہ گولتا لگا دیتے ہیں مسلمہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی مؤنث بنا دیا ہے. مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ عابد سے مؤنث کیسے بنے گا؟ جی اردو میں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر کسی مرد کا نام عابد ہے تو کسی عورت کا نام عابدہ بھی ہوتا ہے. اگر کسی مرد کا نام زاہد ہے تو کسی عورت کا نام زاہدہ بھی ہوتا ہے. تو گولتا یا ہا لگا کے ہم اس کو اردو میں بھی ہم اسی طرح سے اس کو چینج کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. عابد کے لاس پر آپ گولتا لگائیں وہاں پر صرف ہا نہیں لگے گی جیسے اردو میں لگتی ہے عابد سے عابدہ، بلکہ اس میں گولتا لگتی ہے عابدت تن یا تن یا تن. وہ ہم اس کے اعراب کو دیکھیں گے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مس آ رہی ہے. جی تو ہم نے چاروں پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چارٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا پہلو جو میں نے آپ کو بتایا جو کہ واحد، مثنیٰ اور جمع میں تھا وہ تھا عدد. ٹھیک ہے، عدد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اور تیسرا پہلو ہے اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا. جو ہم نے دیکھا تھا ایک لفظ عائشہ میں کہ اگر یہاں پر کوئی بھی لڑکی ہوتا تو اس کا مطلب وہ نکرہ تھا، لیکن اگر وہاں پر کسی کا اسپیسیفکلی نام آیا ہوا ہے تو وہ معرفہ ہے. تو تیسرا ہم نے دیکھنا ہے وسعت کو، یعنی اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کو. اور جو چوتھا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی جملے میں کام کرنے والے کے طور پر آ رہا ہے یا پھر یہ یعنی اگر جملے میں کام کرنے والے کے طور پر آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کام کرنے والا ہے. اس کی اعراب لاسٹ پر کیا ہوں گے جس سے کہ ہمیں پتہ چلے گا. اور وہ ہم نے پہلے دیکھے بھی کہ اس کے لاسٹ پر پیش ہونا چاہیے یعنی ضمہ. لیکن اس کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس چارٹ کے تھرو. واحد میں آپ دیکھیں کہ ہم اردو میں بھی مسلم ہی استعمال کرتے ہیں. ایک مسلم، مسلمن، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ رفع کو فی الحال جو ہے اس کو ابھی اس پہ فوکس نہ کریں. ابھی صرف آپ یہ مسلم، مسلمانی اور مسلمونہ پہ فوکس کریں. اگر ایک مرد کی بات آپ جملے میں کرنے لگے ہیں، ایک مسلمان مرد کی بات، تو اور وہ کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے اس جملے میں، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے. اب اس جملے میں جو ایک مسلمان ہے آپ اس کو کیسے یوز کریں گے؟ آپ مسلمن کہیں گے، کوئی بھی مسلم، مسلمن. تو یہ ہے اس کا واحد. اگر میں کہوں دو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلمانی، یعنی آنی ساؤنڈ لاسٹ پر لگا کے میں نے اس کو دو بنا دیا، مثنیٰ کر دیا. پھر اگر میں کہوں کہ زیادہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو پھر میں نے اس میں لاسٹ پر اونا ساؤنڈ لگا دیا جس سے کہ مسلم جو تھا وہ مسلم اونا بن گیا. آپ نے غور کیا کہ واحد، مثنیٰ اور جمع تینوں صورتوں میں آپ جو مسلمون کی شکل بدلی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مسلم کا لفظ پورے کا پورا اس میں موجود ہے. میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. جی یہ دیکھیں مسلم کا لفظ پورے کا پورا اس میں موجود ہے، یہ مسلم جو کہ واحد میں تھا. اور مسلمونہ میں بھی دیکھیں کہ مسلم کا پورے کا پورا جو لفظ ہے وہ اس میں موجود ہے. اس قسم کے واحد جمع جب ہوں جس میں کہ واحد والی شکل پوری کی پوری تسنی مثنیٰ میں بھی موجود ہو، جمع میں بھی موجود ہو، اور اس کے بعد لاسٹ پر چینجنگ کر کے اعراب کو
जमा बने तो इसको कहते हैं जमा सालिम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जमा सालिम। जी, सालिम का सालिम वाहिद उठ के मुसन्ना में भी आया और जमा में भी आया। तो यूं मुसन्ना की पहचान आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी मैं आपसे पूछूं कि दो कोई भी इसम मैं आपके सामने बोलूं और आपसे कहूं कि आप इसका मुसन्ना बनाएं, तो आपने उसके लास्ट पर आनी साउंड लगानी है। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है। फिर जब हम जमा की बात करें, जमा आपको मैं कहूँ कि इसकी जमा बनाएं किसी इसम की, तो आपने उसके लास्ट पर ऊना साउंड लगाना है। और ये अभी हम सिर्फ मर्द की बात करें यानी मुजक्कर की, अभी हमने मुअन्नस की बात नहीं की। तो जब भी मुजक्कर के लिए आपने मुसन्ना या जमा बनाना है तो आनी और ऊना साउंड लास्ट पर जहन में रखनी है। और ये तब होगा जब इसके वाहिद में लास्ट पर आपको पेश या दो पेश नजर आ रही हो। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन कहूंगी तो आपने मुस्लिमानी कहना है, और मुस्लिमोना कहना है जब इसकी जमा बनानी है। अच्छा, अब हम वुसत की बात करें तो वुसत यानी मैंने आपको बताया था कि मार्फा और नकिरा कैसे बनेगा, कॉमन और प्रॉपर नाउन। तो अरबी में हम जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज करते हैं तो हम उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बुक है, बुक, तो वो कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसके साथ शुरू में दी लगा दूं तो ये दी की वजह से मुझे पता चला कि अब ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास बुक की बात हो रही है, दी बुक। ये मार्फा हो गई, यानी कॉमन से हमने इसको प्रॉपर बना दिया। इसी तरह से अरबी में जो अलिफ लाम है शुरू में अल आ रहा है, ये इसके प्रॉपर होने को शो करता है। जी, ये इसके प्रॉपर होने को शो करता है। यानी अलिफ लाम जब लग गया तो इसका मतलब है अब एक खास मर्द की बात हो रही है, अब किसी आम मर्द की बात नहीं हो रही। और ये भी जहन में रखें कि जब भी आपने इसको मार्फा बनाना होगा तो लास्ट पर तनवीन नहीं आ सकती, ये हमेशा तनवीन के बगैर होगा। अगर वाहिद की बात करें, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमुन गलत होगा, अल मुस्लिमू ठीक होगा। ठीक है, तनवीन